Good evening, students. We are going to continue our topic, laws of motion, lecture number 4. Let me discuss what point to be covered in today's topic. Let's discuss one by one. First, we have to discuss about equation of motion. There are basically three types of equation of motion. First one, V equals to U plus AT, S equals to UT plus 1 upon 2 A T square, and third one, V square equals to U square plus 2 AS. These are the three equations of the motion. We have to discuss about the three equations analytically as well as algebraic proof of the equation motion. How the mathematically we have to prove that equations, we have to discuss in today's class, as well as few numerical examples are related to the equation of motions. That one also we have to cover in today's topic. If you are observing the picture, the swimmer is changing his place, means the person is in a motion. Then we have to find the motions, what is the actual time, what is the initial velocity, what is the final velocity, okay, what is the accelerations, all the accepts you have to discuss in the today's topics. Here, u, what is the u here? U is the initial velocity. What is the u? Initial velocity. V is the final velocity, t is the time, and a is the acceleration. Now here, equation of motion. The first equation of motion we discuss now one by one. All the equation we discuss. Here, if you are finding the ball here, the object if you are finding here ball, and here if you are finding the clock. Okay. Now at the same time, if you are considering that at the zero time moment, the time is zero, then object will be at the same position. What is our motion? What is mean by motion? The object will be changed its place or its position with respect to time and surrounding. If time changes, then only the position will be going to change. The time is same, the position will be again remain the same. As time moves, now here 7 o'clock. Okay, 7 and suppose this is 12. Now as time moves, suppose the clock is shifting here. Then if you are finding the motion of the objects from somewhere, it will be migrating somewhere here or there. Okay, this is the shifting of the ball. That is the motion. Means at the particular time, here to here, some time is required, and the object is going to displace. This is known as the displacement. Generally, we are showing the displacement with the letter S. How we are showing the displacement? Yes. And here, the showing the time here, this is known as the clock showing the time. The ratio of the displacement and time is known as velocity. What is shown as the displacement and time is known as the velocity. Might be you know very well these equations. Now, what is the first equation? First equation, when the ball is moving, when it is displacing from one place to other place, it is going to change the acceleration also. The first equation is related to acceleration. That is acceleration A equals to final velocity minus initial velocity divided by time. You know the definition of acceleration. What is acceleration? The rate of change of velocity with respect to time is known as the acceleration. If you are cross multiplying this equation, then AT equals to V minus U. Then if you are shifting U here, or V equals to U plus AT. This is our first equation of the kinematic equation. This is our the first equations. Got it? First equations. How we are deriving the first equations? We are finding the first equation with the graph. This is the velocity time graph, the graph, and we are finding the slope. Acceleration is nothing but slope is V minus U divided by T. By this way, we are getting the first equation of the motion. Got it? Now here the second one, the algebraic proof of the first equations. Now we have to prove that the first equation, how the first equation is coming. Now the graph, with the help of the graph, I told now what is the definition also. What is the definition of acceleration? Rate of change of velocity. Okay, the A, that is change of velocity divided by time. Change means what? Final velocity minus, that is V minus U divided by T. Then A will be, we can write V minus U divided by T, that is AT
equals to v minus u, that is v equals to u plus, it is our first equation. Why the graph are the same? The graph, this is suppose the initial velocity is u, final velocity is v, and if you are finding the slope, a equals to slope of acceleration, this is the final velocity v, here v, v minus u divided by t, that is again same. By graph also we will get the equation of the motion. So this is known as the first equation. Now the algebraic proof of second equations. How to derive second equation of motion? The second equation, what is the second equation? S equals to ut plus 1 upon 2 a t square. This is our second equation. Now we have to prove how it is. Okay. For that purpose, you should know about the concepts of average velocity. You know about the concept of average velocity as well as the first equation also you should know. What is the first equation? This is our second. You have to prove. We have to prove that one. Okay. We know what? We know v equals to u plus 80. That first equation we know. Correct? That one you have to, second equation you have to prove. For that purpose, again one thing you know, the average velocity is known as v plus u divided by 2. This is known as v average. Average velocity, what is the average velocity? Sum of the two velocity divided by 2. This is the average velocity. And then if we are considering the same equations now with the average velocity, okay, if you are taking that equation values, so you know the values, the velocity equals to displacement by time, or we can write the s for displacement, s by time, this is the average. Then s equals to what? V average into time. What we are writing? S equals what we are writing? V average velocity into time. What is the V average? Here the equation number 3 is known as the V average, that is v plus u divided by 2. Just simply you are substituting the equation. Then we'll come to know s equals to v plus u divided by t into t. Correct? Now if you are finding from this equation number 1, this is a v plus u and multiplied by t. This is average 2, sorry, here. There will be the value is 2. What is the average velocity? V plus v by 2, correct? U plus v by 2, this is our average velocity. If simply if you are simplifying here, and u plus v divided by 2 is our average velocity. Now if you are simplifying that equation, then we'll come to know the equation number 2, that is s equals to, if you are multiplying that equations, or if you are just simply writing the values of v, what is the value of v? U plus 80. So I am writing value of v, u as it is, plus instead of v, u plus 80 divided by 2 and into time is value from v. Yes, from first equation. Got it? How it is? From initial, what is the value of v? From 1. Equation 1. What is the v? V equals to u plus, just I simply written here, instead of v, u plus 80. Then what will be the equation? How we can arrange the s equals to the u plus u? How much? 2u, correct? Plus 80 divided by 2, and what is the multiplying with the which factor? By t. Now if the same equation you are multiplying by this one, this 2 is in denominator, for then we separate the variable u plus u, 2u plus 80, 2 here and 2 there also. Then these 2 cancel, then u into t plus the a t into t, 80 square divided by 2. In second equation, how can we write 8 ut plus 1 upon 2 a t square. This is our second equations that we proved now. समझ में आया? ऐसा प्रूफ करना है, इसे क्या करना है आपको? एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लेना है. एवरेज वेलोसिटी क्या है? u plus v डिवाइडेड बाय 2. then just you have to simply substitute the values of v. v की वैल्यू डालना है आपको. v क्या है तुम्हारा? u plus 80 then 2. then if you are simplifying, you will get the value of s equals to ut plus 1 by 2 80 square. This is the your algebraic proof of equation number 2. समझ में आ गया है? हाँ. Now
about let me discuss about the question. Numerical example is there. A motorboat starts from rest. Starts from rest means what? U, how much? What is the given? U, what is given? U is given 0. And moves with the uniform acceleration and attains the velocity of 15 meter. The final velocity how much? 15 meter per second. And how much time required for that? 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance traversed in the time. You have to calculate the acceleration as well as distance traversed in the time. The same formula we have to use here. What is the formula? The acceleration A equals to what? V plus U V minus U divided by T, or you can use the first equation also. V equals to U plus AT from 1. The first equation, correct? What is V here? 15. U 0 plus A, we don't know, and time how much given? 5. Then 15 equals to 5A, then A equals to 15 divided by 5, then A equals to how much? 5 3s are. This will be our acceleration. Acceleration pucha tha? Acceleration we got now. Now again what they ask? We have to find the distance also. Displacement also. What is the displacement? Second equation. S equals to ut plus 1 upon 2a e square. What is the u here? 0. That's why 0 multiplied by term will be the 0 plus 1 by 2. What is the value of a? Is 3, and value of t is equal to 5. 5 square how much? 25. Correct? Then what is the s? 25 3s are 25 by 2, that is 37.5 मीटर. ये क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा आपका? 37.5 मीटर. गॉट इट? समझ में आ गया? एक्सेलरेशन कितना आ गया अपना? 3, और डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा? 37.5 मीटर. गॉट इट नाउ? द नेक्स्ट वन, an aeroplane takes on the runway for 30 seconds and with an acceleration of 3.2 meter per second. Runway कितना दिया आपको? The taxis of runways for 30 seconds. Acceleration A is given 3.2 meter per second square. Time is given how much? 30. Before taking off, how much distance is to be covered of the runway? तो उड़ने के पहले आपको कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना है आपको. समझ में आया क्वेश्चन? What is given to us? Acceleration is given, है ना? An aeroplane taxis off on runway for 30 seconds. 30 सेकंड के लिए क्या कर रहा है गाड़ी तुम्हारी? एरोप्लेन भाग रहा है. और विद एक्सेलरेशन ऑफ 3.2, और एक्सेलरेशन कितना है उसका? 3.2 है. हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर? डिस्टेंस कितना कवर करेगा निकालना है आपको, है ना? स्टार्टिंग क्या है? इनिशियल भाग रहा है तो तुम्हारा स्टार्टिंग में कुछ था क्या? उसकी स्पीड नहीं थी, स्टार्ट कर दिया उसने भागना, है ना? तो क्या डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? यस इक्वल्स टू ut प्लस 1 अपॉन 2 a. इनिशियली तो 0 था, इनिशियल स्पीड कुछ थी क्या? नहीं. तो क्या है? यहाँ पे 0 था, प्लस 1 अपॉन 2 a कितना है आपका? 3.2 इंटू 30 स्क्वायर. Got it? Then it will be 1.6 into 900. 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900. Then 69 जा how much? 144. And point where? 1440 meter. This will be your answer. समझ में आ गया? The next one. Now you have to prove the third equation. now अब क्या करना है आपको? प्रूफ थर्ड इक्वेशन करना है. ओके, व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 as. ये प्रूफ करना है आपको. सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, है ना? इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए आपको? व्हाट वी शुड नो दैट टू प्रूव. ये क्या करना है आपको? प्रूफ करना है. उसके लिए आपको मालूम क्या चाहिए? आपको फर्स्ट इक्वेशन मालूम चाहिए, v इक्वल्स टू u प्लस 80. ये इक्वेशन पता है आपको? और डिस्प्लेसमेंट पता है आपको? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? v एवरेज क्या होता है? u प्लस v डिवाइड बाय 2. ये क्या है तुम्हारा? एवरेज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
वी एवरेज इंटू टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? वी एवरेज इंटू टाइम। ये चीज मालूम है आपको? देन अगेन वी आर यूजिंग दैट सेम वन, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू वी एवरेज कितना है आपका? u plus v divided by 2, and again here time is what? T. So take a from first equation, what is the time? Just you write the values of time. क्या है टाइम? क्या है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से देखो आप, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टाइम इक्वल्स टू t इक्वल्स टू क्या आएगा? v माइनस u डिवाइडेड बाय a, करेक्ट? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट इज द टाइम? v minus u divided by a is this time. Then just I am simply writing it there. Yes equals to u plus v divided by 2, and instead of time what I am writing there? v minus u divided by a. बराबर है क्या? That terms are in denominator. What is our denominator? 2 and a are in the denominator. After shifting there will be in a numerator. Then it will be 2a and s. This 2a and yes, there will be numerator equals to here u plus v in one bracket and other bracket v minus u. Correct? You know the equation, algebraic equation, otherwise you can multiply us. If you are simplifying, you will get 2as equals to v square minus u square. Or if simply if you are shifting u on that side, that is v square equals to u square plus 2 as. This is your थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन. समझ में आया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा आ गया आपका, है ना? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन. नाउ few examples of that equation of motion. Now a kangaroo can jumps 2.5 meter vertically. वर्टिकली जंप कर रहा है, क्या ऊपर मार रहा है जंप, है ना? हॉरिजॉन्टली यानी क्या है? आगे. वर्टिकली का मतलब क्या है? ऊपर. व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द kangaroo? kangaroo की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जंप मार रहा है, डिस्टेंस तुम्हारा 2.5 जा रहा है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जो मार रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मार रहा है ना, खाली जंप और डिस्टेंस कवर कर रहा है. वो डिस्टेंस कितना है आपका? देखो फॉर्मूला क्या है आपका? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे आपको कुछ दिया गया? एक्सेलरेशन दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, खाली इनिशियल वेलोसिटी बारे में पूछा है. जब मार रहा है वर्टिकली मार रहा है. वर्टिकली का मतलब क्या है तुम्हारा? इस तरह जगह पे था तो ऊपर. इसका मतलब जगह पे पहले कैसा जगह पे था? पहले जगह का था मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? 0. एंड दे आर आस्किंग द सेम, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द kangaroo? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी kangaroo की? क्या थी यहाँ पर? 0 थी. बाद में डिस्टेंस तुम्हारा 2.5 क्या? गॉट इट? समझे क्या? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ kangaroo? सिंप्लीफाई. सॉरी 0. इनिशियल था ही नहीं, है ना? The next one, an electron moving with a velocity of 5 into 10 raised to 4 meter per second. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया है, देखो आप. Enters in uniform electrical fields and acquires uniform acceleration of 10 meter per second. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया है. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 into 10 raised to 4 meter per second, and acceleration is given 10 meter per second squares in the directions of its initial motion. First, calculate the time. क्या निकालना है आपको? Calculate the time in which the electrons would be acquires the velocity is double. टाइम निकालना है आपको जब कब जो वेलोसिटी क्या हो गया आपकी? डबल हो रही. पी कंडीशन क्या है? कैलकुलेट द इन टाइम निकालना है इन इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स द वेलोसिटी डबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल क्या थी आपकी? ये थी 5 थी, बराबर है. v कितनी हो गई आपकी अभी? 2 मल्टीप्लाइड बाय u, दैट इज 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 रेज टू 4 मीटर पर सेकंड. ये हो गई. हाउ मच टाइम, हाउ मच डिस्टेंस इट बी द इलेक्ट्रॉन? डिस्टेंस भी निकालना है. कुछ समझ में आ गया? क्या करना है आपको? फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है. अगेन यूज द सेम फॉर्मूला. फर्स्ट एक्सेलरेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, है ना? v क्या हो गया आपका? v डबल हो गया है u से. तो आप में v की जगह पे क्या लिखा? 2u लिखोगे यहाँ पे. 2u इक्वल्स टू u प्लस a कितना है आपका?
10 और टाइम निकलेगा यहाँ पर। यहाँ पे आया बार कितना हो गया तुम्हारा, u इक्वल टू 10 इंटू टी। यू कितना है आपका 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 10 इक्वल टू टी। तो कट करने के बाद में कितना आ गया 5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू टाइम। तो टाइम कितना हो गया आपका, टाइम इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ सेकंड, दैट इज 5000। बराबर है क्या, टाइम कितना आ गया आपका 5000 सेकंड। अब क्या निकालना है फिर बाद में, डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला करके आप, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, फाइनल वेलोसिटी डबल हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या u² है, तो 2u का होल स्क्वायर इक्वल टू u² प्लस 2a कितना है 10 है, और s कितना आ गया अपना, डिस्टेंस कितना कवर कर दिया उसने, निकालना है अपने को, बराबर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कितना हो गया तुम्हारा 4u² माइनस u² इक्वल टू 20 इंटू एस, दैट इज 3u² डिवाइड बाय 20 इक्वल टू यस। तो अभी वैल्यू डाल देना है। तो u² की वैल्यू कितना है, मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, उधर जगह नहीं बैठी तो मैं यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से अभी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 3 u कितना है आपका 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, दैट इज u मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाइंग बाय u and u डिवाइड बाय 20। 5 1 5, 5 4 20, दैट इज 15 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁸ ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। यस, सिंप्लीफाई करना है तो कर दो, नहीं तो फिर इतना ही लिख दो आपको। ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, समझे, इलेक्ट्रॉन उतने डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा आगे मूव होगा। समझ में आया क्या, है ना। ये पहले सबसे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या है तुम्हारा फोर्थ पेज, फोर्थ, है ना। तो नेक्स्ट वाला देखिए अभी, a car is moving uniformly on the starting road, accelerated by 2 meter per second square। कार क्या है तुम्हारी, कार is moving uniformly on a straight road, straight roads, it's accelerated by ये कितना है आपका 2 meter per second square। As the result it covers a distance of 120 meter। डिस्टेंस कितना कवर कर दिया उसने 120 मीटर इन 9 सेकंड, ठीक कितना है। The initial and final velocities of the car are respectively। इनिशियल वेलोसिटी क्या निकालना है आपको, u निकालना है और v भी निकालना है। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार रिस्पेक्टिवली r। तो आपको दोनों भी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी भी निकालना है और फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिया है इक्वेशंस, तो कैसे निकालोगे आप, कुछ तो मालूम होना चाहिए था इसमें ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका u प्लस AT। तो यहाँ पे आपको इनिशियल पता नहीं, फाइनल भी पता नहीं है, हाँ a पता है आपको और t पता है। तो अपन करेंगे v माइनस यू, v माइनस यू कितना हो गया आपका 2 इंटू 9, दैट इज v माइनस यू इक्वल टू कितना हो गया 18। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसे, v माइनस यू कितना हो गया तुम्हारा 18। और क्या निकालना है आपको, सेकंड इक्वेशन पता है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपका v² u² प्लस 2as, ये भी पता है आपको। तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2, a कितना है आपका 2, यस कितना है 120, दैट इज v² माइनस u² इक्वल्स टू 4 इंटू 120, दैट इज v² माइनस u² इक्वल्स टू 12 4 480। a v² माइनस u², व्हाट वी आर एबल टू राइट, a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला है ना, लिख सकते हैं अपन v माइनस u एंड v प्लस u, बराबर है। बट यू नो द वैल्यूज ऑफ v माइनस u इक्वल कितना है 18 है, v माइनस u कितना है 18 है। तो यहाँ पे 18 इन ब्रैकेट v प्लस u इक्वल्स टू 480 की, इसकी वैल्यू क्या है, v माइनस u की वैल्यू कितनी है 18 है। तो फिर क्या हो गया आपका v प्लस u इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाय 18। यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर पे क्या हो जाएगा तुम्हारा डिवीजन में जाएगा,
v प्लस यू की वैल्यू क्या है, v प्लस यू इक्वल्स टू, डिवाइड कर देंगे अभी, किसे डिवाइड होगा वो, 2 से कर दो पहले, कितना आ गया 9, और 2 4 0, 3 से होता है क्या डिवाइड, 3 3 जा 9, और 3 8 जा, तो कितना आ गया तुम्हारा 3v प्लस 3u इक्वल्स टू 80, ये इक्वेशन आ गया एक, है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या है तुम्हारा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 3v माइनस 3u इक्वल्स टू 18 3 जा 54, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट को, then if you are eliminating that one, this will be the 3 plus 3 6v equals to 5 4 4 8 plus 5 13, correct, and v equals to 134 divided by 6, v कितना आ गया, v equals to 6 1 6 6 2 12, carry 1 6 12.20 and 22.6 जा रहा है ना, 22.333 कंटिन्यूसली आते जा रहा है, v की वैल्यू मिल गई आपको। इफ यू गॉट द वैल्यूज ऑफ v, देन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ u आल्सो, है ना। तो क्या है तुम्हारा फर्स्ट कौन सा है तुम्हारा, v कितना आ गया आपका 22.33 माइनस u इक्वल्स टू कितना है 18, एंड माइनस u इक्वल्स टू 18 माइनस 22.33, u कितना हो गया आपका 22.33 माइनस 18, देन 33, और कितना आ गया 4, u कितना आ गया फिर, u इक्वल्स टू 4.33 मीटर पर सेकंड, ये आपका u भी आ गया और v भी आ गया। आपने पूछा क्या था, u और v पूछा था, है ना, अपना u भी आ गया और v भी आ गया। तो u कितना है अपना, u कितना है 4.33 मीटर पर सेकंड, एंड v इज हाउ मच 22.33 मीटर पर सेकंड। ये आपके आंसर आ गए u एंड v, गॉट इट, कैसा समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए person throws a ball with with a velocity v from the top of the tower, ऊपर से क्या कर दिया, बॉल फेंक दिया उसने, तो वर्टिकली अपवर्ड, जो ये टावर पे है पर्सन यहाँ पे है, और यहाँ से फिर बॉल क्या कर रहा और ऊपर फेंका उसने टावर पे से, है ना, दिस इज द टावर, ओके, एंड द पर्सन इज थ्रोइंग द बॉल, हियर पर्सन इज देयर, इज थ्रोइंग द बॉल with the velocity v, vertically upward directions, and the ball reaches the ground with the speed of 3v, यहाँ पे आ रहा है बॉल, तो फिर यहाँ पे कितनी स्पीड से आ रहा है ग्राउंड, तुम्हारा बॉल ग्राउंड पे आ रहा है 3v से आ रहा है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, अरे टावर और बिल्डिंग पूछा देखो, है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए तुम्हारा, बिल्डिंग नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पे टावर नहीं चाहिए, दोनों में से एक ही होना चाहिए। बॉल टावर से तो हाइट अपन टावर निकाल सकते हैं, है ना, या तो फिर बिल्डिंग ही निकाल सकते, दोनों में से एक निकालना चाहिए, समझे क्वेश्चन। यहाँ पे बॉल फेंक रहा है आदमी पर्सन, उसकी वेलोसिटी क्या है तुम्हारी v है, ऊपर जब फेंकेगा जब फाइनल क्या हो जाएगी वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, वो अपन एक्सेलरेशन, ग्रेविटी क्या है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना होता है ग्रेविटी का g, है ना, तो g कितना होता है तुम्हारा, g इक्वल्स टू कितना है 9.8 मीटर पर, ये तुम्हारा आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन v, फाइनल कितना हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे 0, है ना, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ जाएगा अपना, फाइनल कहाँ, फाइनल वेलोसिटी 0 पे आ जाएंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आ जाएगा, तो p इनिशियल वेलोसिटी है, फॉर्मूला u प्लस सॉरी v इक्वल्स टू u प्लस 80, यहाँ पे ये इनिशियल क्या है तुम्हारा, इनिशियल v है, फाइनल क्या होगा आपका 0, ये क्या है तुम्हारा a कितना है तुम्हारा t, और टाइम कितना है को पता है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, और ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी क्या होगी माइनस होगी, सॉरी इक्वल्स टू 0 माइनस gt, है ना, तो यहाँ पे u की जगह पे क्या है आपका v है, u की जगह पे क्या है यहाँ पर v है, तो माइनस v इक्वल्स टू माइनस gt, माइनस माइनस कैंसिल, तो t कितना आ गया आपका v बाय वैल्यू है t की, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा उसे v बाय t लगा है। अब यहाँ से बॉल नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 3v होगी, है ना, तो सेम इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस
80। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, यहाँ पे 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 3v, है ना, 3v हो गई। और एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा ग्रेविटी का g, और टाइम कितना है आपका t, टाइम कितना है आपका t। तो 3v इक्वल्स टू g और t। तो आपको पता है t की वैल्यू कितना है v बाई जी। 3v इक्वल्स टू g इंटू v बाई जी, जी कैंसिल, 3v इक्वल्स टू कितना हो गया फिर v, है ना। तो जो इनिशियल यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आई क्या, गड़बड़ हो गया शायद मेरे ख्याल से। The initial velocity of the ball is final velocity is 3v. From it will be releasing from there. That is the initial velocities. Final velocity is this one. A value of g we can take 9.8 also. gt and g t time okay हाँ टाइम यहाँ तक के लिए टाइम उसका क्या है ये है v बाई जी है। यहाँ तक के लिए टाइम दिया है उसका v बाई जी, उसके आगे का टाइम नहीं दिया ना, तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा टाइम t2 g इंटू टाइम t2, टाइम t2 है ना, ये टाइम t1 है आपका, क्या है g t2। तो t2 कितना हो गया आपका, t2 इक्वल टू tv बाय जगह टाइम t2 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, बॉल ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है t1 लग रहा है ना, और नीचे आने के लिए क्या लग रहा है तुम्हारा टाइम t2 लग रहा है। तो यहाँ पे वही निकालना था, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, तो अभी हाइट निकालना है आपको। हाइट कैसे निकाल लेगा अपन, यस इक्वल्स टू हाइट के लिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, है ना, यस यानी हाइट है यहाँ पे आपकी। तो वी कितना है आपका, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 3v है, बराबर इनिशियल कितनी हो गया ऊपर 0 हो गई, प्लस 2 जी की ए की वैल्यू कितने है जी, और यहाँ पे कितना है आपकी हाइट h, दैट इज 9v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इक्वल्स टू h। ये हो गया आपकी हाइट ऑफ द बॉल, 9v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यहाँ पे वैल्यू डालना है तो आप डाल सकते हो, है ना। फाइनल कैलोरी वेलोसिटी आपकी डबल हो रही है। द नेक्स्ट वन देखिए, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बुक्स बी लाइक। यहाँ पे क्या बताया, एक बुक्स बताया एक सिंपली, ये क्या कर रहा है, ये पर्सन इज पुलिंग द दैट ऑब्जेक्ट्स, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पुल करने से ये रोल हो रहा है ना, और रोल हो रहा है तो यहाँ पे इस नीचे जैसे जैसे ये आदमी नीचे जैसे जाएगा वैसा वैसा क्या होता जाएगा, वो तुम्हारा इसका जो ग्रिफ है वो क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे आगे जाएगा, है ना, जैसे शोन द मोशन। A ball is dropped from the height h or reaches the ground in time t. What is the height from the ground at t by 2? क्या कर रहा है देखो, a ball is dropped from the height h, यहाँ से बॉल ड्रॉप कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसकी बॉल की हाइट, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h, यहाँ पे आने के लिए उसे क्या लग रहा है, टाइम कितने लग रहा है t लग रहा है। तो जब टाइम t by 2 है, जब आधा टाइम है यहाँ पे होगा ना, तो क्या करना है, व्हेन टाइम इज व्हाट इज द हाइट, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हाइट निकालना है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे क्या था, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, फॉर्मूला है अपने पास। यहाँ पे क्या था देखो, तो टाइम बोलो तो भी चलेगा, जस्ट इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। देखिए अभी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है आपकी 0 है ना, तो यहाँ पे हाइट कितना है, इसके जगह हाइट कितना है h इक्वल्स टू 1/2, g कितना है आपका 9.8 और g लिखो, और टाइम कितना है आपका t स्क्वायर, दैट इज 2h बाय g इक्वल्स टू t स्क्वायर, दैट इज t इक्वल्स टू कितना हो गया इन रूट 2h बाय g। तो यहाँ पे 2h बाय g यानी क्या पूरा टाइम लगने के लिए इतनी हाइट हो गई। अभी टाइम क्या है तुम्हारा t बाय 2 है, जब क्या होगा, तो इफ t इक्वल्स कितना है t बाय 2, हाइट क्या है तुम्हारी t बाय 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा h इक्वल्स टू इनिशियल तो 0 है 1/2 g, टाइम क्या करना है आपको t बाय 2 का स्क्वायर 1/2 g, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, बराबर है, तो 1/8 g t स्क्वायर इट्स योर द हाइट, देन
इफ टाइम टी बाई टू करें ना अपन, तो ये आपकी होगी, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, टी बाई टू ये आपकी हाइट हो गई है, तो यहाँ पे भी h 8h डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, देन t इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 8h बाय t, ये आपकी आ गई टाइम। नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी ये हाइट होगी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस आर गिवन, tripling the speeds of motor cars multiply the distance need to be stopping by it। कार क्या करे, स्पीड अपन 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं, स्टॉप होने के लिए क्या है, क्या लग रहा है बता रहा है ना, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर कार। पहले मोटर कार की इनिशियल स्पीड क्या थी, v थी, बाद में क्या कर दिया अपन ने, ट्रिपल कर दिया ने 3u कर दिए। तो डिस्टेंस नीड टू बी द स्टॉपिंग बाय इट, तो डिस्टेंस कितना लगेगा, डिस्टेंस पहले d था तो पहले s था, तो डिस्टेंस क्या लगेगा वो निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या आपका, वही फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, यू स्क्वायर प्लस 2 as। तो वी स्क्वायर कितना है आपका, स्टॉप हो रहा है, फाइनली रुक जाएगा गाड़ी आपकी, है ना, स्टॉपिंग कार, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर कार। ओके, मोटर कार की स्पीड क्या हो रही है तुम्हारी, ट्रिपल हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ, 3u का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, दैट इज 9u स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as is 8u square equals to 2as। If you are dividing by the 4u square equals to as, है ना। The distance need for the stopping by car is, तो distance क्या लगेगा आपको, कितना निकालना है, 4u square by a equals to s। ये क्या लगेगा आपका, डिस्टेंस लगेगा, है ना, 4u square divided by a, ये डिस्टेंस लगेगा आपको। डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी आपकी गाड़ी तुम्हारी रुक जाएगी। और ऐसा भी कर सकते हैं आप, v इक्वल्स टू कितना, u प्लस 80, तो इससे नहीं, सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे अपन, तो यस इक्वल्स टू कितना है, यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाले तो भी आ जाएगा, ईजी है। लेकिन नेक्स्ट वन, फ्रॉम एन एलिवेटेड पॉइंट a द स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। फिर वही है, फिर ऊपर से क्या करें अपन, स्टोन फेंक रहे ऊपर, व्हाट इज द स्टोन रीचेज द डिस्टेंस h below a, the velocity is double, what was the height of above the h and the greatest heights attained by the stone is। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो, जैसे अपन बिल्डिंग का क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बताया, फ्रॉम द एलिवेटेड पॉइंट बोलते तुम्हारा ये पॉइंट एलिवेटेड पॉइंट है, यहाँ पर है, और प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ से स्टोन क्या फेंका आपने, ऊपर फेंका है, रिचेज द डिस्टेंस ऑफ h, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, h हो गया है, एंड बिलो a, तो बिलो क्या है, a के ऊपर, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे क्या है, यस तुम्हारा यहीं पे कहीं तो भी है, बिलो a इट्स वेलोसिटी इज डबल, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, v थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 2v हो गई। ड्रॉप करें ना अपन, सॉरी ऐसा नहीं है क्वेश्चन, देखिए तो क्या करें अपन ने, इसमें ये एलिवेटेड पॉइंट से स्टोन ड्रॉप कर दिए, नीचे छोड़ दिए, यहाँ पे क्या थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पे h पॉइंट है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी उसकी क्या है, u थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 2u हो गई। फ्रॉम एन एलिवेटेड पॉइंट a द स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड ही फेंक रहे हैं, पहले क्या बराबर था, the elevated point stone is thrown vertically upwards when the stone reaches a distance h below the a। तो यहाँ पे क्या है h, और a की क्या है, नीचे है पॉइंट, ये a यहाँ पर है, below the a its velocity is double, what was the height h from the above, तो ये हाइट निकालना है, h कितना हाइट है, and the greatest heights attained by the stone is, तो मैक्सिमम हाइट स्टोन कितना जाएगा वो भी निकालना है। मैक्सिमम कितना जाएगा तुम्हारा, जब ऊपर फेंकने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी, है ना, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट a दिया है उसमें, तो क्या है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, v स्क्वायर इक्वल टू कितना है, u स्क्वायर प्लस 2 as बोलो या तो gs बोलो, as। फाइनल वेलोसिटी क्या, देखो अब यहाँ पे क्या बताया स्टोन का, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है आपकी, डबल हो रही है। एलिवेटेड पॉइंट्स a the stone was projected vertically upwards when the stone reaches a certain distance h, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, h हो गया है ना, तो a 2 प्लस h बिलो इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू डबल, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है, तो यानी क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पर, इनिशियल कैसा u था, वेलोसिटी कितनी होगी तुम्हारी, 2u स्क्वायर, दैट इज 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 ah,
3u² इक्वल्स टू 2ah। h कितना हो गया फिर 3u² डिवाइड बाय 2a। ये क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ h की हो गई, ये वैल्यू ऑफ h हो गया, बराबर है। अब क्या पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। ग्रेटेस्ट हाइट कितना होगा जब स्टोन क्या होगा तुम्हारा फाइनली 0 पे जाएगा, दैट इज व्हेन वी इफ फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, दैट इज 0 इक्वल्स टू u² प्लस आवर ग्रेविटी होगा यहाँ पे 2gh, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा u² इक्वल्स टू 2gh। तो h कितना होगा तुम्हारा u² बाय 2g इक्वल्स टू h। आप चाहे तो g की वैल्यू और a की वैल्यू डाल सकते हैं, a इक्वल्स टू g 3u² बाय 2g, g की वैल्यू डाल सकते हैं आप। ये तुम्हारी मैक्सिमम हो गई h मैक्स और तुम्हारी इसकी हाइट। गॉट इट। द एसेंथ इक्वेशन, एसेंथ कैसे निकालोगे, एसेंथ इक्वेशन इज nth इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1, ऐसे निकालते हैं अपन। तो Sn यानी क्या, यहाँ पे St का इक्वेशन पता है आपको, यस इक्वल्स टू क्या है ut प्लस 1/a t², ये टाइम एट द टाइम t है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एट द टाइम n लेना है, तो n ले तो क्या आएगा आपका यस n यानी Sn प्लस 1/a n² माइनस, अभी क्या लेना है n की जगह पे n-1 लेना है, यस n-1 प्लस 1/a n-1 होल स्क्वायर। If you are simplify this equation, we will get the values. Yes, n plus 1/a n² minus yes n minus yes plus 1/a n² plus 1 minus 2n, बराबर। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देंगे, yes n plus 1/a n² minus sn plus s minus 1/a n² माइनस 1/a प्लस माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा प्लस 1/a n। तो क्या हो रहा है कैंसिल, प्लस एस एन माइनस एस एन प्लस an² माइनस an² कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग हियर यस, और ये बच गया आपका, है ना, यस माइनस 1/a प्लस 1/a n। इसमें से 1/a कॉमन ले लो, यस माइनस 1/a कॉमन ले बाद क्या आ गया, माइनस 1/2 ले तो प्लस हो गया माइनस n। ये आपका इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ Sn, है ना, माइनस 1/2 कॉमन लेने के बाद में ये इक्वेशन। द नेक्स्ट वन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी क्या दिया आपको, u क्या दिया आपको 0। द एक्शंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स इफ the distance covered in the first 10 seconds is s1। तो क्या दिया s1 कितना दिया आपको 10 सेकंड दिया, एंड फर्स्ट 20 सेकंड यस 10 दिया, और s20 कितना दिया आपको 20 सेकंड दिया है। देन रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2, s1 एंड क्या है 2 टाइम्स 10 to the 20, है ना, कर सकते फिर आप ये काफी साइड से क्या और ओके, तो चलेगा। तो यहाँ पर तो सेम यहाँ पे होमवर्क दिया आपको यहाँ पे 2 के बाद में, ये नेक्स्ट वाला देखो, पार्टिकल स्टार्ट्स मूव्स फ्रॉम द रेस्ट अंडर द सेम क्वेश्चन दिया, देखो ये 10s का था और 10s2 का था, सेम दिया है। नेक्स्ट 10 यानी 10 + 10 20, द सेम क्वेश्चन इज गिवन। नेक्स्ट 10, नेक्स्ट का मतलब क्या है 10 + 10 दैट इज 20, इसका पिछले जो था वही था। नेक्स्ट वाला देखो, the brakes applied to the car produces the uniform retardation। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये कितना दिया आपको -90 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। द कार वाज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 27 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट डिस्टेंस टू बी कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अभी इनिशियल क्या है आपको और फाइनल क्या, और तुम्हारा रुक जा रही गाड़ी, है ना, रुक जा रही, तो आपको क्या करना है फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी में डिस्टेंस कितना कवर करेगी निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपका
यहाँ पे मीटर, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे मीटर दिया, तो यहाँ पे कन्वर्ट, वी नीड टू कन्वर्ट इन अ मीटर. इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 100 इट विल बी इन अ मीटर. देन एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस, है ना. फॉर्मूला क्या है आपका, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS. तो फाइनली कितना हो रहा है आपका, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 27 थी, 27 का स्क्वायर इनिशियली क्या था, सॉरी फाइनली 0 है, इनिशियली कितना है 27 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है आपका माइनस 0.9 और एच कितना है आपको निकालना है. ये आपका आंसर है 27. इधर के बाद क्या हो जाएंगे, माइनस 27 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.8 माइनस 1.8 इंटू एस, माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा, कैंसिल हो गया. तो 27 इंटू 27 डिवाइडिंग बाय 1.8 इक्वल्स टू कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करता हो, डिवाइडेड बाय 10 करता हो, तो कितना हो गया 18 हो गया ये, है ना. तो 9 1 9, 9 3 27, 2 5 27, 15 यस कितना आएगा फिर 27 मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर. मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप, मल्टीप्लाई कर देंगे 27 इंटू 15 जो भी आ गया वो आपका आंसर्स. नाउ द रिमेनिंग आर द होमवर्क फॉर यू. द फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, approximately 4-5 questions are given. You try to solve the questions. If you are unable to solve, you ask me any times. Okay, no, not an issue. आप कभी मुझे पूछ सकते हो. तो आज क्या क्या देखा है अपन ने क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे ले, और उसका एनालिटिकल proof, and few numerical examples also we discuss, and few the questions also given for you to solve that numerical example. आपको कुछ solve करने के लिए homework भी दिया है. Okay, if anyone having the difficulty in today's topic, please you ask and clear your doubts. कोई difficulty है क्या आपको, बोलिए बेटा. या SN इक्वेशन, तो SN इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे SN जो है SN था, तो क्या करते हैं अपन SN माइनस SN माइनस 1 ये इक्वेशन से निकालते हैं. इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर टाइम के लिए इक्वेशन निकाले अपन ने. बस फाइंड आउट द पर्टिकुलर टाइम. यू नो द फॉर्मूला ऑफ एस फॉर्मूला क्या है, ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर. वहाँ पे टाइम क्या है तुम्हारा, t है ना. यहाँ पे क्या करने का, SN का क्या है, यहाँ पे t के जगह पे लिखने का n लिखने का, तो क्या होगा तुम्हारा SN प्लस 1/2 a n स्क्वायर. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, t के जगह पे n लिखा. आप क्या लिख रहा हूँ मैं, t की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, n माइनस 1 लिखूंगा इक्वेशन में. u t माइनस 1 प्लस 1/2 a t माइनस 1 होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करना है ना. करते हैं क्या सिंप्लीफाई अभी इसको. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा SN प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा तुम्हारा 2n, है ना. 2 un माइनस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a और n इंटू 2 बराबर. इसका क्या एक्सपेंशन होगा तुम्हारा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 a इंटू n, ये और ये तुम्हारा कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, देखो अभी फिर से सिंप्लीफाई करते हैं SN, ये क्या है un, है ना. यहाँ पे फिर क्या होगा तुम्हारा, सिंप्लीफाई करने के बाद में un प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस 1/2 a n स्क्वायर माइनस 1/2 a प्लस a. तो यहाँ पे क्या होगा un कैंसिल, 1/2 a 1/2 कैंसिल, जो बचा वो क्या है आपका u माइनस 1/2 a प्लस a. ये आपका इक्वेशन आएगा 1/2 a n आएगा, है ना. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 एंड हियर 2n. तो यहाँ पे 1/2 a प्लस 2n. तो ये इक्वेशन होगा आपका एसेंस का, समझे. और क्लियर नाउ, shall we wind up today's session then? Okay, thank you.